So, okay, today we will discuss the next circuit used uh, to make by op-amp. So, okay, so we can make, design a circuit which is known as comparator by op-amp. Okay, so what is the function of op-amp? In general, the op-amp compares the signal present at two inputs and then produces an output. So generally, as we know, uh, the open loop gain of operational amplifier is infinite. Okay, ideally it is infinite, but practically it has a value of 10 to the power 5. Okay, so any op amp, when it is used in an open loop configuration, means if we do not apply any feedback between input and output, then the op amp will have a gain of infinite, or in practically 10 to the power 5. So what will happen? The output of this op amp is equivalent to plus VCC in positive direction and is equivalent to minus VCC in negative direction. Okay, so this is the behavior of an ideal op amp. Okay, it's not an ideal op amp, but it's practical op amp. Agar ideal op amp hoga, to the behavior is like this way. Okay, so what happens ki when we increase input, okay, when it slightly increase in positive direction, since it is in open loop configuration, the gain is very high. Suppose we apply 1 volt at the input. Okay, 1 volt apply kiya, then what we will get? 1 into 10 to the power 5. So 1 into 10 to the power 5 is not possible. Okay, because we have not applied the voltage, DC voltage of that level. Okay, so what it will give? It will give maximum output plus VCC, and when we decrease the input voltage, or you can say when we decrease the input voltage of inverting terminal, when input voltage is slightly increased, it will reach in saturation. So when in positive direction we increase the voltage to 10 to the power 5, means if we apply 15 microvolt voltage, so 15 microvolt multiplied by 10 to the power 5, so it will be 15 volt, 1.5 volt, है ना? So similarly, if the voltage level is more than the microvolt, it is in the range of millivolt. Suppose we have applied 1 millivolt voltage. So 1 millivolt, 1 into 10 to the power minus 3 into 10 to the power 5. So it will be 100 volt approximately. But the op amp is not able to produce 100 volt because of this DC supply. ठीक है, क्योंकि ऑप एम्प कोई भी वोल्टेज जनरेट नहीं करेगा, कोई भी एम्पलीफायर कोई भी वोल्टेज जनरेट नहीं करता, इट सिंपली कन्वर्ट्स डीसी वोल्टेज टू एसी. ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो किसी भी अगर हम लोग ओपन कॉन्फ़िगरेशन में यूज करेंगे, तो जैसे हम स्लाइटली इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस VCC, और जैसे नेगेटिव डायरेक्शन में हम थोड़ा ही वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस VCC. ठीक है, तो ये डायग्राम है. यहाँ पे अगर देखिए, तो अगर हमने यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज अप्लाई कर दिया यहाँ पर, सो V इनपुट जो चेंज होगा, ठीक है, अगर V इनपुट पॉजिटिव जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, और जैसे ही V डिफरेंस से ज्यादा होगा, ठीक है, व्हेन V इनपुट इज ग्रेटर देन V डिफरेंस, सो क्या हो जाएगा? वोल्टेज आउटपुट विल बी प्लस Vsat, V सैचुरेशन, इसको Vsat कहते हैं, प्लस Vsat. और जैसे ही नेगेटिव में भी V डिफरेंस से थोड़ा सा कम होगा, जैसे मान लीजिए कि वी हैव अप्लाइड अ साइनोसाइडल वेवफॉर्म, सपोज यहाँ पे अगर हमने एक साइनोसाइडल वेवफॉर्म अप्लाई किया, ये है, ठीक है, तो जैसे ही ये वोल्टेज, जैसे ही V, यहाँ पे मान लीजिए कि आपने एक वोल्टेज यहाँ पर कर दिया, ये हो गया, ये मान लीजिए कि ये V प्लस ये V रेफरेंस की वैल्यू है,
तो जैसे ही पॉजिटिव डायरेक्शन में वी रेफरेंस से हाई जाएगा वैसे ही यहाँ पे प्लस वी सेट मिलेगा, और जैसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ से जैसे ही इस डायरेक्शन में मूव करेगा वैसे ही माइनस वी सेट मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी शेप का ये होगा सिग्नल होगा, इट विल गिव दिस टाइप ऑफ वेवफॉर्म where this is plus V set, है ना, plus V set and this is minus V set। ठीक है, तो ये वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, तो ये है रेफरेंस वोल्टेज है। तो रेफरेंस वोल्टेज को हम इस तरीके से लगाते हैं, यहाँ पे एक दो, मान लीजिए हमारे पास एक पावर सप्लाई है V वोल्टेज की, तो वी कैन डिवाइड इट, the reference voltage is here and the value of reference voltage will be R2 by R1 plus R2। तो R2 by R1 plus R2 इस पॉइंट पे हमने अप्लाई कर दिया और यहाँ से इनपुट अप्लाई किया। ठीक है, सो वी विल गेट दिस टाइप ऑफ आउटपुट। ठीक है, सो you can see कि if V input is greater than when we have applied input at inverting terminal, ठीक है, then we are talking about when we applied reference at the inverting terminal and V input at a non-inverting terminal. So if V input is greater than V reference, then V output will be plus VCC, and if V input is less than V reference, we will get minus V output। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया। अभी जो प्लस VCC है ये आइडियल केस की हम बात करें, बट प्रैक्टिकली यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 1.3 to 1.5 वोल्ट लेस देन VCC, क्योंकि कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा सर्किट में। ठीक है, तो ये हो गया op-amp voltage comparator compares the magnitude of two voltage input and determines which is the largest of। ठीक है, कौन सा ज्यादा है। So op-amp comparator compares one analog voltage level with another analog voltage level or some preset reference voltage V reference and produces an output signal based on this voltage comparison। ठीक है, so this is your voltage comparator। ठीक है, as we know, since we are using it in open loop configuration, the gain is very high। So we are considering 3 cases। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया V रेफरेंस। तो V रेफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, V रेफरेंस इज इक्वल टू, अगर हम लोग V रेफरेंस की बात करेंगे, so V रेफरेंस विल बी R। क्या हो गया, who is there, अनन्या, अनन्या, रोल नंबर 18। Yes, ma'am. हाँ, तुम्हारे Yes, यहाँ ma'am. शोर आ रही है। ठीक है, R1 R2 by R1 plus R2। ठीक है, okay, so case 1 हमने लिया कि assume that V input is less than the this voltage V reference। ठीक है, so when V input is less than the V reference, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल पे है, तो when voltage at non inverting terminal is greater than voltage at inverting terminal, since it produces the difference, it amplifies the difference of input। तो difference में क्या हो गया, this plus non-inverting terminal voltage is greater than the inverting terminal voltage, so it will produce plus V set। ठीक है, second, when V input is greater than V reference, sorry यहाँ पे okay less है, अगर less है so it will produce minus V set। when V input is greater than V reference, it will produce plus V set। तो हम हमेशा इसमें कंपैरेटर की जब भी बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज है उससे ज्यादा है कि कम है। अगर वोल्टेज एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल is greater than the voltage at inverting terminal, then it will produce plus V set। ठीक है, when the voltage at non-inverting terminal is less than the voltage at inverting terminal, then it will produce minus V set। ठीक है, तो डिफरेंस यहाँ भी हो सकता है, डिफरेंस हम पॉजिटिव पे भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी पे भी अप्लाई करेंगे। हमें सिर्फ ये कंपैरिजन देखना है कि हमारे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो ग्रेटर है इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज से और लेस है। अगर लेस हुआ तो नेगेटिव आउटपुट मिलेगा, माइनस V सेट मिलेगा, और अगर प्लस है तो प्लस V सेट मिलेगा। ठीक है,
So if we reduce gain of the V input so that it is slightly less than the reference voltage, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया कि ये अगर आपका V reference है, ये ऊपर वाला, ठीक है, अगर ये आपका V reference है, ठीक है, ये वाला, ये V reference है, तो जैसे ये जब इस रेफरेंस को जैसे ही क्रॉस करेगा वैसे ही प्लस V सेट होगा, और जैसे ही नीचे की साइड में क्रॉस करेगा वैसे ही माइनस V सेट होगा, ठीक है। तो यही है, ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। सो ये इतने तरह के कंपैरेटर के एक है। पहला तो फिक्स्ड वोल्टेज डिवाइडर विद रेफरेंस, जैसे यहाँ पे बताया, तो यहाँ पे हो गया R2 वोल्टेज डिवाइडर रूल लग जाएगा, R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू VCC, ये भी रेफरेंस हो गया। तो जब भी यहाँ का वोल्टेज V इनपुट इस वोल्टेज से ज्यादा होगा तो आउटपुट प्लस V सेट मिलेगा, जैसे इससे कम होगा माइनस V सेट मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया है, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस में सेम इस ये वोल्टेज, ये रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसी तरीके से हम डीसी बैटरी से भी रेफरेंस दे सकते हैं। तो रेफरेंस के डिफरेंट तरीके हैं, या तो VCC एक सप्लाई लगा करके यहाँ पे एक उसको शॉर्ट कर सकते हैं, वेरिएबल कर सकते हैं, और वी कैन प्रोवाइड रेफरेंस वोल्टेज बाय यूजिंग DC वोल्टेज, or we can provide the reference voltage by Zener diode. So these are the options for the reference voltage. ठीक है, तो हम इससे कर सकते हैं, Zener diode से कर सकते हैं, वेरिएबल अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ये डिफरेंट वेज हैं यूजिंग रेफरेंस वोल्टेज, ओके। सो अगेन टाइप ऑफ कंपैरेटर, पॉजिटिव वोल्टेज कंपैरेटर, नेगेटिव वोल्टेज कंपैरेटर। Positive voltage comparator, when we apply reference to the inverting terminal, then it is positive voltage comparator. When we apply V reference to the non-inverting terminal, then it is negative voltage comparator. So first we talk about the positive voltage comparator. Positive voltage comparator means कि when input increases slightly with V reference, it will produce plus V set. When input decreases, it produces minus V set. So this is the input voltage. Okay, this is the input voltage we have applied here. This input voltage. Okay, and the reference voltage. This is the reference voltage. Here R है, दोनों R है. So the VCC is divided into two parts. यहाँ divide हो गया है. ठीक है. Here we are not using minus VCC. ठीक है, that's why your this output is from 0 to this. If we use a separate supply minus VCC at this point, then this vary from minus VCC to plus VCC. ठीक है, तो ये RR दोनों सेम है, तो इसलिए इसके बिट में आ गया। तो when input increases by this voltage VCC, जैसे इसे increase करेगा, what will happen? The output here, output is 0. When input is less than this VCC V reference voltage, the output is 0. And when input increases slightly with this V reference voltage, you will get plus V set. V output is V set. ठीक है, ये हो गया V reference है, तो ये plus V set हो गया। ठीक है, again at this point when input decreases reference voltage, then output is 0. ठीक है, तो इस पे नहीं वेरी कर रहा है। This change in output depends on the V reference voltage. Where our input crosses this V reference level, that will decide the change in output. ठीक है, तो ये हो गया आपका normal positive voltage comparator, because here we are getting positive response. ठीक है, not we are not getting inverting response, we are getting non-inverting response. Means output and input both are in same phase. ठीक है, then this is your non-inverting, so negative voltage comparator. Negative voltage comparator में we are connecting this positive terminal to the reference voltage. ठीक है, तो यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज हो गया। ओके, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे रेफरेंस है। सो अगेन when this V reference is greater than this voltage, you are getting positive output.
when V reference is less than this voltage, you will get minus. ठीक है, V reference ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वही हमेशा डिसाइड करेगा कि आउटपुट क्या है. इफ voltage at this terminal is positive with respect to the voltage at inverting terminal, then you will get positive response. When the voltage at this terminal is negative with respect to this, you will get negative response. So here in this case क्या है, V reference, suppose this is your V reference, ठीक है. So when input is less than V reference, Ayush, any doubt? Ayush, why you have raised your hand? ठीक है. So when input is VCC by 2 है ये रेफरेंस, तो जब भी इनपुट हमारी इनपुट है, जब भी इनपुट इससे लेस होगा यू विल गेट पॉजिटिव रिस्पॉन्स. जैसे ही इनपुट इसको क्रॉस कर रहा है यू विल गेट नेगेटिव रिस्पॉन्स. ठीक है. फिर जैसे ही इनपुट यहाँ से क्रॉस करके नेगेटिव आ रहा है यू विल गेट पॉजिटिव रिस्पॉन्स. तो दिस इज नेगेटिव वोल्टेज कंपैरेटर. नेगेटिव इसलिए क्योंकि इसमें इनपुट इज चेंजिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन. ठीक है. एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है इसमें अभी तक? अगर है तो पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो आगे बढ़े. ठीक है. सो ये हो गया नेगेटिव वोल्टेज कंपैरेटर. ठीक है. देन दिस इज वोल्टेज, ये है. हमने साइनोसाइडल अप्लाई किया. दिस इज द वी रेफरेंस वोल्टेज. तो ये वी रेफरेंस है. जैसे ही इसने वी रेफरेंस को क्रॉस किया यहाँ पर, सो यू आर गेटिंग पॉजिटिव वोल्टेज क्योंकि नेगेटिव से कनेक्टेड है. और जैसे ही इसने यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में जैसे ही वी रेफरेंस को क्रॉस करके नेगेटिव आया, यू विल गेट नेगेटिव आउटपुट. ठीक है. तो ये सेम. ठीक है. वी, अब यहाँ पे जीरो लाइन का कोई वैल्यू नहीं है. जहां पे वी रेफरेंस क्रॉस हो रहा है वहीं पे ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पर है. अगर यहाँ पे हम लोग देखें, हमने भी इनपुट अप्लाई किया है इस टर्मिनल पे नेगेटिव पे, अभी नेगेटिव पे अप्लाई किया है और वी रेफरेंस पॉजिटिव पे. अब इसका अपोजिट हो जाएगा. जैसे ही देखिए इनपुट है, ये वी रेफरेंस है. जैसे ही इनपुट वी रेफरेंस से जैसे ही इंक्रीज कर रहा है, एक्सीड कर रहा है, आउटपुट आपका नेगेटिव में चला जा रहा है. ठीक है. यहाँ पे जैसे वी रेफरेंस से फिर नेगेटिव आ रहा है, आउटपुट विल गो पॉजिटिव. फिर जैसे ये यहाँ तक इस पॉइंट तक जहां तक वी रेफरेंस नहीं क्रॉस कर रहा, आउटपुट पॉजिटिव है. जैसे ही वी रेफरेंस को क्रॉस करके पॉजिटिव जा रहा है, आउटपुट नेगेटिव हो जा रहा है. ठीक है. फिर इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक आउटपुट पॉजिटिव है. ठीक है. जैसे इसने क्रॉस किया तो इस पॉइंट पे यहाँ पर है. ठीक है. इसी को अगर हम लोग दूसरा भी वो कर सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारा ये साइनोसाइडल वेवफॉर्म है इस तरीके से. ठीक है. और रेफरेंस हमारा यहाँ पर है, ये रेफरेंस है, मान लीजिए वी रेफरेंस. तो क्या होगा आउटपुट? सो आउटपुट क्या होगा जब ये, ठीक है, आउटपुट अब क्या होगा अगर हम लोग इस केस की बात करें, तो जैसे ये रेफरेंस को यहाँ से क्रॉस कर रहा है, ठीक, ये इनपुट है, ये मतलब जीरो लाइन है, ये रेफरेंस है. तो जैसे ही रेफरेंस को क्रॉस कर रहा है, ये रेफरेंस है. ठीक है. यहाँ से जैसे ही क्रॉस किया तो आउटपुट आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. कहाँ तक नेगेटिव होगा? यहाँ तक. ठीक है. देखिए यहाँ से पॉजिटिव यहाँ तक. तो यहाँ तक आपको पॉजिटिव है तो आउटपुट आपको नेगेटिव मिलेगा. ठीक है. अब यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव मिलेगा. ठीक है. इस पॉइंट तक, रेफरेंस तक. ठीक है. यहाँ तक पॉजिटिव मिला. ठीक है. फिर कहाँ तक जाएगा? वी रेफरेंस, कहाँ, ये जो सिग्नल है यहाँ आया, इस पॉइंट तक फिर आपको नेगेटिव मिलेगा. ठीक है. ये तो इस तरीके से मिलेगा. ये जब इसको रेफरेंस को जैसे ही क्रॉस किया वहां से नेगेटिव आ गया. ये इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है. ये रेफरेंस लाइन अब हमने जीरो के नीचे लिखा है, ये जीरो एक्सेस हो गया. इसके नीचे अगर ले रहे हैं तो ये इसमें क्या हो रहा है कि पॉजिटिव आपका नेगेटिव पीरियड ज्यादा हो गया, पॉजिटिव पीरियड कम हो गया. ठीक है.
तो ये हो गया। किसी को कोई डाउट अगर कंपैरेटर में है तो पूछ लीजिए, ठीक है? नो डाउट एट ऑल? क्यों, कुछ डाउट है कि नहीं? चलिए फिर इसी कंपैरेटर में एक और सर्किट है, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। Zero crossing detector is nothing but it is a form of a detector circuit. Zero crossing detector में हम क्या कर रहे हैं कि इसके एक में इनपुट अप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव में और एक को हमने ग्राउंड कर दिया है, ठीक है? ग्राउंड है तो सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये ग्राउंड लेवल हो गया। अब ग्राउंड में जैसे ही एक पॉजिटिव यहाँ से यहाँ तक ये नेगेटिव आएगा, ठीक है? जब ये पॉजिटिव जा रहा है, चूंकि इनपुट हमने कहाँ पे अप्लाई किया है, यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है? तो ये पॉजिटिव जा रहा तो ये पॉजिटिव ही जाएगा, ये 0 वोल्ट है। ये कुछ डायग्राम दूसरे का है, मतलब इसमें ये पॉजिटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव टर्मिनल होगी और ये नेगेटिव होगा, ठीक है? अब इस केस में ठीक है कि इनपुट जब हम नेगेटिव पे अप्लाई कर रहे हैं तो जब तक 0 पे जैसे ही पॉजिटिव जा रहा है इनपुट नेगेटिव आ गया, जैसे ही नेगेटिव गया इनपुट आउटपुट पॉजिटिव आ गया, इनपुट पॉजिटिव आउटपुट नेगेटिव, तो ये आ गई प्लस वी सेट माइनस वी सेट, ठीक है? तो यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था। अगर इसका अपोजिट हो जाएगा कि यहाँ पे जो प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, मतलब कि हमने अगर हम इनपुट अप्लाई करें इन्वर्टिंग, ये here we have applied input at a inverting terminal, but if we'll apply the input at a non-inverting terminal then you will get different response. Response means कैसा आ जाएगा, तब ये आएगा, यहाँ से पॉजिटिव आएगा प्लस वी सेट, इसके बाद ये नेगेटिव जाएगा, देन पॉजिटिव देन नेगेटिव। ये जो सर्किट था इसके लिए ये रिस्पॉन्स आएगा और यहाँ पे जब डायरेक्शन चेंज होएगा रिस्पॉन्स इज दिस। एंड व्हाई डू वी कनेक्ट these two diodes? Diodes इसलिए हम लोग बीच में हमेशा हर कंपैरेटर के बीच में लगाते हैं। These are known as clamp diodes. They are used to protect the op-amp from damage due to the increase in input voltage. क्योंकि इसका जो basic circuit है internal circuit, that is a differential amplifier. So if the voltage across differential amplifier increases beyond a limit, then it will damage the op-amp. So we are just using clamping diodes because when this signal is positive, D1 will conduct and this will short circuit this and the current will flow through it. When this voltage at this terminal will increase more than 0.7 of this, then this diode will conduct and the voltage is regulated. Okay? So this is for today. If anyone have any doubt, you can ask. किसी कोई डाउट है? क्यों? Anyone have any doubt or no doubt? So there are few problem in tute. ट्यूट में आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा गड़बड़ कर रखा है। काफी लोगों ने ट्यूट में एक दूसरे की, मैंने अभी एक दो लोगों का और भी एनालिसिस किया था कि जिन्होंने दूसरों की ट्यूट कॉपी कर लिया है स्कैन करके, तो अभी मैंने मार्क्स इसमें कुछ लोगों को दे दिए हैं, लेकिन नेक्स्ट ट्यूट में आई विल अवॉर्ड 0 जो लोग कॉपी कर एक दूसरे का स्कैन करके दे रहे हैं। और मेरे हर पेज पे रोल नंबर होगा, सेकंड जब आप लोग सबमिट करेंगे असाइनमेंट तो हर पेज पे रोल नंबर होगा और हर पेज का स्कैन कॉपी होगा सीरियली, ये नहीं कि कोई आधा पेज है कोई पूरा पेज है, नहीं, पूरे रजिस्टर में बनाइए 1 by 1 और स्कैन करके दीजिए, ठीक है? सेकेंड ट्यूट मैंने इसमें डाल दिया है एंड सेकेंड ट्यूट में जो भी थ्योरी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग कर लीजिए, ठीक है?